setting ceremony. Sit there. Hi. And all the women, let's have a pat on their back, including me. I'll do on mine. Because yes, being a daughter, being a mother, being an educator, being a sister, there's so many roles we're playing. We all know that. But somehow being there for each other. That is what I've seen in women more. With due respect to all the men out here. So yes, of course, while we say brotherhood, there's a new definition of sisterhood now. And I feel we are celebrating it day and night. Of course, I told Mr. Pramodji that I'll be a little late today, but it got unduly because of coming all the way from Vigyan Bhavan. 2 days, 7th, 8th March. We hosted the National Convention of Women Leaders, where we honored, when I say we, our country, India, honored 1,200 women. And it was really amazing moment out there. And I got a chance to chair President of India today. So while we were, moderating that panel, we were not allowed to go out and it was all shut. So I was really feeling I have to be here. Why so? Because quantity doesn't matter. What matters is quality. What matters is people who are thriving for that growth. Where I was honoring the change makers of India. Where I am, I'm seeing thriving ecosystem. Through CMD Business Club and many more who are here. I might not be naming them because it's been recent collaboration that I get to know the quality work Mr. Pramod has been doing, and it is really nice. And it would have been really sheer pleasure if I was here a little more earlier to hear all the presentations, because speaking is one thing, but when you are hearing others, somewhere you ask yourself, how did you get here? Somewhere you ask yourself, what was the initial point you started? And who are the people who became catalysts in your growth? Isn't it? Let's make it light. I know many familiar faces sitting here who have been, meeting somehow or the other. And I see some smiling, some nodding. I feel everything we do, every bit we do for ourselves. That's no one can change. Every action of ours, we're doing for our own self, for our kids, for our family, for maybe people, society, then comes the country, and so on. And so I heard from Mr. Pramod that, here the club has been thriving and there's so many people who are genuinely interested, not just to grow, but to grow together. That is the point. Doing for self, we all are doing. But doing for others, that's amazing. So while, I saw beautiful Muskan, sharing the profile, every moment, every platform, every stage with the grace of God, wherever this profile is being heard, this gives me another chance to be gratitude. Yay! All enjoying the Lord, ma'am. Thank you for joining us. Thank you. So that's the Gen Z out there, putting up live out there, yeah? That's also going paper. That's amazing. Yeah, ma'am. Please. Wonderful. Kanika ji and Priya ji are already lined up for a wonderful spiritual session out here. So this is what it goes. Now moving ahead, as we said, my whole life is about life skills, is about, what she said. Sometimes we miss realizing what is shining in us. So we need someone out there who can, what is shining in you, and let's do it. That is what she done in the unprivileged kids. I should say, amazing. I came down from Delhi. I remember to take the session when my son was, I guess, 2-3 years. Now he's 13. So what I'm telling. Fairly big size, and then research and education for the English country. इस साल से ऊपर हुए मुझे. मेरे क्लाइंट हैं जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, बहुत पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, स्टेट हेड हैं, और जब इन्वेस्टमेंट्स की बात होती है और वो और उनकी वाइफ बैठती हैं, तो वाइफ कहती है ये जाने कहाँ इन्वेस्टमेंट हो रहा है, कितना हो रहा है, ये जाने. मेरे दूसरे फ्रेंड और क्लाइंट हैं जो साउथ ईस्ट एशिया के हेड हैं आईटी के, जब वो और उनकी वाइफ बैठती है तो फिर वही होता है, ये जाने. ये मैं क्यों पिन पॉइंट कर रहा हूँ? 2021 सेकेंड वेव आई थी कोविड की, मार्च से शुरू हो गई थी, अप्रैल में. वो 45 डेज हम लोगों ने अपना, मैं, मेरी वाइफ, मेरे 2 बेटे
और करीब 20 लोग हमारी टीम के, हमने 45 दिन पूरा ऑफ कर दिया था, क्योंकि बस टीवी पे देख रहे थे और परेशान हो रहे थे। तो मुझे लगा परेशान ही होते रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कुछ गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज कर देंगे एंड दैट्स इट। तो ऑफिस तो बंद ही थे, सारे वर्क फ्रॉम होम हो रहे थे। 45 दिन हमने काम किया, जो भी गैस की बात थी, सिलेंडर की बात थी, बेड्स की बात थी, करीब करीब 100 लोगों की हेल्प हम कर पाए और जिनके थैंक्स आते थे उसको अगर मैं फाइनेंशियल टर्म्स में कन्वर्ट करूं, फाइनेंशियल क्वांटिटेटिव, तो 100 जाने बचाएंगे और उसकी 4 गुना नहीं बचा। वो भी मैसेज आते थे जो बहुत डिस्टर्बिंग होते थे। अब उसका और इस फाइनेंशियल प्लानिंग से क्या लेन देन है? वो जो 400 लोग करीब करीब थे, उनको जो पैसे की परेशानी मैंने देखी है, वाइफ को पता नहीं पैसे कहाँ इन्वेस्टेड है, कैसे निकालने हैं, कैसे स्विच करने हैं, पैसे हैं कुछ नहीं पता, क्योंकि ये जाने वाली चीज थी। तो वहां से मुझे लगा कि जब भी मुझे कोई मौका मिल रहा है, कोई मेरे अगर क्लाइंट आते हैं, उसको मैं डायरेक्टली नहीं हैंडल करता हूँ, टीम है, मैं हमेशा कहता हूँ अगर बात करनी है तो वाइफ को लेके आइए। अभी मैं 2 मिनट के अंदर में बिल्कुल जैसे रैपिड फायर क्यों टाइम होता है तो एंड ऑफ द इवेंट होता है, मैं शुरुआत कर रहा हूँ। मैं चाहूंगा लेडी इमीडिएटली मुझे बता, मैं कुछ क्वेश्चन लिख के लाया था आप लोगों के लिए, हाँ या ना में जवाब दीजिए, मुझे कोई और डिटेल नहीं चाहिए, कोई नंबर नहीं चाहिए, कोई कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। कितनी लेडीज होंगे जिनको भैया तुम आप इधर आ जाओ, मैं वहां से नहीं देख पा रहा हूँ, इधर नहीं देख पा रहा हूँ। कितनी लेडीज होंगी जो इन्वेस्टमेंट्स होते हैं घर में, उनको पता है कि उनकी फैमिली में बेसिकली स्पाउस ने कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं। कितने लोग हैं लेडीज, जरा हाथ उठाते हैं, हाँ है तो हाथ उठा दें। कितना पैसा इन्वेस्टेड है पता है तो हाथ उठा दें, नहीं पता है तो नहीं उठाएं। ज्वाइन करते हैं, सही ना? और यहाँ से हमारे कनेक्शन भी डेवलप होते हैं और हमारे को एक नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं बिजनेस की ग्रोथ के लिए भी, लर्निंग के लिए भी, बहुत सारी चीजों के लिए। तो कौन कौन अपनी लाइफ में मतलब ग्रो करना चाहता है? अच्छा, कौन कौन अपनी लाइफ में बहुत अच्छा ग्रो करना चाहता है? सच में ये किसने बोला सभी करना चाहते हैं? नहीं, सभी नहीं चाहते। अगर सभी चाहें तो सभी ग्रो कर देंगे, हो जाते हैं। जब तक हम नहीं चाहेंगे, देखो मैं विकसित होऊंगा तो राष्ट्र भी विकसित हो जाएगा और मेरा घर परिवार भी विकसित हो जाएगा। डेवलप सेल्फ, डेवलप इंडिया। जब तक हम दूसरों के लिए सोचते रहेंगे ना कि हाँ सभी डेवलप, सभी चाहते हैं, नहीं मैं चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं, जब हम सब चाहेंगे ना तो फिर सब हो जाएंगे। ऐसा है ना? अभी बार बार हम लोग महिला, नारी ये सब कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि आप दोनों हैं, आप महिला भी हैं और नारी भी हैं, चाहे आप पुरुष हैं चाहे आप भी हैं। कौन कौन जानते हैं इस बात को? आपने भोले बाबा का स्वरूप देखा कभी? हाँ देखा ना? हम एक चेतना है, चेतना पुरुष है, वो सिर्फ दृष्टा है, वो कुछ नहीं करती, ओनली दृष्टा। और एक शक्ति है हमारे भीतर जो नारी का स्वरूप कह लो, शक्ति का स्वरूप कह लो, तो वो शक्ति है, नारी नहीं है। नारी तो हमने अपनी पहचान बना दी। तो एक शिव है, एक शक्ति है। शिव वो है जो हम हैं और शक्ति वो है जो हम दिख रहे हैं। शिव वो है जो हम दिख नहीं रहे, जिसे पूरा का पूरा अस्तित्व संचालित है, ये पूरी सृष्टि संचालित है जिसकी ऊर्जा से। और शक्ति वो है जो आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे सब जगह। तो हम मेल और फीमेल दो एनर्जी है। तो अगर आपने इस एनर्जी का सिस्टम समझ में आ गया तो ये सोच लो इस जीवन का उद्देश्य भी समझ में आ जाएगा। और अपने लाइफ में आप जितना भी बड़े से बड़ा लक्ष्य है आप चाहते हो हासिल करना, वो भी कर पाओ। सारा खेल ऊर्जाओं का है। अगर हमें अपनी ऊर्जाओं को सही ढंग से अलाइन करना आ जाए, अपने गोल के साथ अलाइन करना आ जाए, तो वी कैन ग्रो डेफिनेटली। और आप वो हर लक्ष्य हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हो। मैं एक एग्जांपल देता हूं, नो पॉलिटिक्स। स्वामी विवेकानंद जी को देखा होगा आपने, कभी झुकने वाली कोई बात नहीं, लोग हंसते थे, ये कहां से साधु संत आ गए। और जब उन्होंने
अपनी स्पीच शुरू करी, अपना भाषण शुरू करा और लास्ट में जैसे खड़े होकर के ना वो लोग तालियां बजा रहे थे। आप सोच करके देखो, अगर आपने किसी ने वो वीडियो सुनी हो, देखी हो और उस चीज के बारे में सुना हो। नरेंद्र मोदी को देखो, ट्रंप जैसा व्यक्ति कहता है मैं झुका लूंगा इसको, और वो शांत बैठा है और थोड़े दिनों बाद ना वो व्यक्ति अपने आप बौखला जाते हैं। ठीक है, आ जाइए आप। अब समझो ये क्या है, ये ऊर्जाओं के साथ मतलब अपना तालमेल है। और जब हमें अपनी ऊर्जाओं के साथ अपना तालमेल करना आ जाता है ना, तो आप ये सोचो कि हम अपने जीवन में कभी हताश नहीं होते, कभी निराश नहीं होते। और जितने लोग ये कहते हैं ना कि मुझे तो किसी का साथ नहीं मिला, मेरे जीवन में तो बहुत संघर्ष रहा है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, ठीक है, घर वाले मेरा साथ नहीं देते, पति मेरा साथ नहीं देता, पत्नी मेरा साथ नहीं देती, मम्मी पापा मेरा साथ नहीं देते, मेरी नजरों में तो वो पागल है। और अज्ञानी है किसकी नजरों में? अपने संतों की नजरों में। जब आपकी एनर्जी, आपके ओरा का अगर आपको पता चल जाए, जब आपकी एनर्जी अच्छी होती है तो आप जोश में, खुशी में, जॉय में, उत्साह में, उमंग में होते हैं। और जब आपकी एनर्जी अच्छी नहीं होती तो आप हताश, निराश होते हैं। जिस टाइम आप हताश, निराश होते हैं उस टाइम पे ना तो आपका घर वाले आपका साथ देते हैं, नहीं पड़ोस वाले साथ देते हैं, नहीं बाहर वाला कोई अच्छे से अच्छा मित्र भी आपका। वो भाभी जी, अगर वो इतना टाइम इनको ना देंगे और अगर इन्होंने रात को 11, 12, 1 बजे तक अगर 1 to 1 ना की होती और कभी कभी छत पे जाके गायब ना हो गए होते तो आज इतनी महफिल आनी जरूरी होती। मानता ना? और ये भाभी जी की विनम्रता ही है। आप सोचो, तो कोई नहीं कर पाता। और कहते भी तो है ना कि एक सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है। ऐसा ही होता है ना? तो मैं ऐसा बोलता हूँ, एक देवी का हाथ होता है। तो आप सभी भाभी जी के लिए एक बार जोरदार तालियां कि हम सब यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर अगर मौजूद हैं, उपस्थित हैं, तो वो इनकी कृपा है। इनकी कृपा के बगैर यहाँ भाई साहब ऐसा परफॉर्म नहीं कर पाते। थैंक यू भाभी जी, दिल से शुक्रिया। हेलो एवरीवन, आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। मुझे थोड़ा डर लग रहा है बोलते हुए, मेरा फर्स्ट टाइम है स्टेज पे फर्स्ट टाइम। हाँ, मतलब स्टेज पे फर्स्ट टाइम है। तो यार बोलेंगे कुछ भी हो, हम निकट में बोलेंगे। मैं स्टार्टिंग में पैदा हुई थी, मैं अपने बारे में बताने का। मैं हकलाती थी जैसे पैदा हुई थी, पहली बार बोलना हकलाती बोलना शुरू। स्कूल से रोज रोक आता, रोज कोई ना कोई मेरा मजाक उड़ाता। टीचर ने खड़ा करना ही छोड़ दिया था रीडिंग के लिए कि तो हकलाएगी, तो इसे उठाते ही नहीं है क्योंकि उठेगी, रीड करेगी, लोग हंसेंगे तो ही रोने लग जाए। तो मैं ऐसी लड़की थी, 20 साल तक शायद कहीं खड़े होके स्टेज पे तो दूर किसी के साथ बात भी नहीं कर सकती थी। लेकिन आज मैं यहाँ हूँ, मैंने बहुत सारे स्टेजेस पे बोला है। I've been a trainer for my teams, coached many people, but I don't market myself on internet. I can't do that. So why I came here, not to show myself, I came to make her feel better. कि सामने जो खड़ा है ना, वो आपसे भी कमजोर है। पता है इसमें कितने लोग कमजोर हैं जो ताली भी नहीं बजा पाते, कितने लोग कमजोर हैं who are much stronger than them, who are standing here. So now you have to speak at least 5 sentences without even thinking कि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, क्योंकि लोगों ने आपके लिए कुछ भी नहीं किया। आप बोलो, हम सब आपका कोशिश करते हैं। सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग। मैं आज सुबह का ही आपको बोलूंगी। आज जीजा जी मेरे पास आए सुबह, उन्होंने मुझे बोला कि रितु बताओ तुम्हारे लिए मैं क्या बोलूं। तो मैंने उनको बोला कि मेरे लिए क्या बोलोगे, मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, घर पे पूरा दिन बस हाउस वाइफ हूँ। कह रहे हाउस वाइफ होना भी कोई आसान जॉब नहीं है, वो भी बहुत मेहनत का काम है और मुझे प्राउड है कि तुम करते हो पूरा दिन घर में काम वगैरह सब कुछ। मुझे सुन के इतना अच्छा लगा कि जीजा जी ने मेरे लिए इतना अच्छा बोला, तो मैंने कहा ठीक है। और मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक यू बोलूंगी क्योंकि उनके सपोर्ट के साथ मुझे मतलब आगे जो मुझे चाहिए करना होता है वो मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। थैंक यू। और मेरी बड़ी ननद और छोटी ननद ये सबसे ज्यादा मेरी छोटी ननद, वो मुझे बोलती है कि तुम
अपने आप से प्यार करो, अपने लिए जियो, क्या हमेशा घर में काम काम करते रहते हो। ये तो 5 लाइन से ज्यादा हो गया।